Hanji, good morning. Chapter which is biodiversity and conservation. First of all, let us discuss what is biodiversity. So, it is the presence of the enormous variety or the variability among the group of living organisms which exist in our ecosystem or which are there in different ecosystem around the world on the planet. These ecosystems, are the ecosystems which vary with the geographic region, the ecosystems which are there in the biomes, an ecosystem which is there in the sea, an ecosystem which is there on the mountains, an ecosystem where uh, there are a lot many places on earth which have not been found yet. So huge number of species which include the living organisms with different forms, sizes, color and shape and with their own unique ecological relation with their own ecosystem is what is referred to as the biodiversity. So wherever it is desert, forest, mountain, grassland, snow-clad mountains, the biodiversity ranges from inter alia, terrestrial, marine, and aquatic ecosystems. Marine is often referred to as the seawater. It is particularly used as the seawater, and the aquatic is all kinds of water. Wherever there is water, uh, groundwater, the ponds, lakes, reservoirs, fresh water, and seawater, including seawater. Now, we'll go through the levels of biodiversity. There are three different levels: the genetic diversity, the species diversity, and the ecosystem diversity. These are the three levels of the biodiversity which are there because of the difference between the species and the species which are found in different biomes or on the different places on the earth's surface. Now, with the genetic diversity, it is when the genes from within the same species shows the different versions due to the new combinations. Genes are basically the hereditary information carriers. That is, they, for example, um, the similarity information, the appearance, the color, the voice. So they transfer that hereditary information from one generation to the other generation or the second generation, and with which within the same species they show different versions due to the new combinations. An example here is from the food with the rice. So rice is the general name which we use, but the biological or the scientific name of the rice is from the species which is called by Oryza sativa. So Oryza sativa, whenever they form different combinations with each other, they give rise to new species, new species within the same category of Oryza sativa, which would then differ by shape, size, color, nutrient content, or aroma. Another example is from the beans, where we must have seen that different variety of the beans are available around us. And the most common beans that we also use at our home, which is rajma, the soya bean, rongi. I don't know their English names, but this is the different variety that exists within the
same species of beings. Next is the species diversity, which is actually dominated through the richness of a particular category of a thing within the species. That is their existence in abundance on this planet, and they are easy to find. And this can be measured through, there are two indexes through which it is measured. One is called as the Shannon Wiener Index, and the second is called as the Simpson Index, जिसके थ्रू ये उस तरह की स्पीसीज को मेजर करते हैं जो कि डोमिनेट करती है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को। ठीक है, और ये बेसिकली जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं इसके अंदर, वो एक पर्टिकुलर रीजन या क्लस्टर में से पॉपुलेशन से कोई सैंपल पिक करते हैं एंड वहाँ पे उनका नंबर चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितनी तरह की स्पीसीज हैं, कौन सी स्पीसीज हैं जिसका ज़्यादा नंबर है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन उसका चेक होता है। एंड सो इसके थ्रू इनका सर्टेन लेवल्स एंड अनसर्टेन लेवल्स चेक किए जाते हैं। अगर हाई सर्टेनिटी है इसका मतलब होता है कि हाई डाइवर्सिटी है, एंड हाई डाइवर्सिटी का मतलब उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने आर्टिकल इसके पढ़ने हैं, इसको गो थ्रू कर सकते हो आप डिटेल में। एंड there are lot many species which exist on the earth surface then which have been actually discovered and named. Even the मेरे ख्याल से even the concept of mermaids would exist somewhere on earth but haven't been found in actual or even published anywhere, जब कोई साइंटिफिक कम्युनिटी या कोई टीम ऑर्गेनाइजेशन जब कोई ऐसी रिसर्च करती है, when they have found a new thing or the new species, वो कहीं ना कहीं पे आर्टिकल्स हमेशा पब्लिश करते हैं। इधर दे आर द साइंटिफिक जर्नल्स जहाँ पे उन आर्टिकल्स की पब्लिशिंग होती है क्योंकि उनका वो ऑथेंटिक एंड यूनिक काम होता है, और इन द विद द न्यूज एजेंसी जहाँ पे उन आर्टिकल्स की पब्लिशिंग होती है। सो बट हमने अभी तक ये हमेशा वीडियोस में ही देखा है दैट देयर कुड बी अ थिंग एग्जिस्टिंग लाइफ बिलो द सी विद द मूवमेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। मैं तो वीडियोस में ही देखी है, बट अगर कोई चीज़ ऐसी होती तो वो चीज़ पब्लिश हुई होती। अगर पब्लिश हुई होती सो दैट इज द ऑथेंटिकेशन कि हाँ कोई एक्चुअल में चीज है जो एग्जिस्ट करती है एंड इट हैज बीन डन, और उसको किस तरह से उन्होंने क्या मेथडोलॉजी लगा के उसको फाइंड आउट किया है, उसके ऊपर किस तरह के एग्जिस्टिंग अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होते हैं उसके आसपास टेस्ट किए जाते हैं कि उसके एग्जिस्टेंस का जो एक पॉइंट टू प्रूव है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता अमंग दी पॉपुलेशन जो उन्होंने सैंपल लेके टेस्ट करना है। सो इस तरह की चीज़ें आपको अभी से ही हैबिट डाल देनी चाहिए। डिग्री तो हर किसी के पास होती है, बट आप अभी से ही थोड़ा रिसर्च की तरफ अपने आप को लेके जाओ और आर्टिकल्स पढ़ा करो। ये जर्नल्स बहुत हैं पढ़ने वाले, और जर्नल्स को गो थ्रू करो, एक आधा पेपर भी पब्लिश करो अगर जो भी आपका फील्ड का इंटरेस्ट है। देन next comes to the ecosystem diversity, that is a variety formed which is categorized by। अब ये वैरायटी इस तरह से फॉर्म हुई है कि इसकी जो फॉर्मेशन हुई है इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या चीजें आ जाती है? मॉइस्चर, टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड, प्रेसिपिटेशन, with which we have tremendous of variety in our ecosystem। अब जहाँ पे
वो कहते हैं ना, जहाँ पे आप इफ यू विल कीप योर प्लेस टाइडी एंड मॉइस्चर फ्री, वहाँ पे लिजर्ड्स नहीं घूमती. सो लिजर्ड्स दे नीड अ प्लेस वेयर इट इज डार्क, इट इज ह्यूमिड. उनको जगह चाहिए होती छुपने की वहाँ पे. सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जानवर सच एज लिजर्ड्स और उसकी स्पीसीज पाई जाती हैं. इवन अगर आपके घर पे कई जगह पे सामान पड़ा होता है, बहुत देर से पड़ा हुआ है, आपने कभी उस जगह का यूटिलाइजेशन नहीं किया, और आप उसको उठाओगे तो नीचे से उसी तरह के एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं. Now, it also depends upon the other factors, which are the ecological niches. Ecological niche एक condition है जहाँ पे उस तरह के जानवर का या organism का survival है in the ecosystem. Then the trophic structure. Trophic structure means the is a part of the energy cycle, and वो energy cycle चल रहा है किसी भी तरह से चल रहा है बिटवीन द, बिकॉज हर तरह का कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है जो उस ट्रॉफिक साइकिल को, एनर्जी साइकिल को चला रहा है. देन फूड वेब्स, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड सो ऑन. सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, वेरिएशंस हैं, जो कि कम्स इन द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. न्यूट्रिएंट साइकिल जहाँ पे एनर्जी एंड मैटर between the living and the non-living organisms continuously transfer हो रहे हैं. So this kind of diversity is of great value, and इसको हमेशा हमें संभाल के रखना है. And this has been developed over the million of years, and humans have almost disturbed this balance. But we do see around us that people are trying to maintain the balance as well as, therefore the important thing is the replacement on. अच्छा, एक और बात, जो इस बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा ठीक है. अदरवाइज कुछ ऐसे सोल्यूशंस नहीं फाइंड आउट करने कि जिसमें आप ये सोचो कि एक इकोसिस्टम को दूसरे इकोसिस्टम के साथ रिप्लेस कर सकती हो. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड इस तरह की डाइवर्सिटी इवॉल्व हुई होती है. क्यों होती है? अगर आप रिप्लेस करने की कोशिश करोगे, वो रिप्लेस बिल्कुल नहीं आएगा, वो नई कंडीशन के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा इकोसिस्टम. इस तरह की डाइवर्सिटी का आने का कारण यही है, क्योंकि जो भी हमारे पास लिथोस्फेयर लेयर है, एंड जो हमारे पास लिथोस्फेयर के साथ आपका एटमॉस्फेयर चल रहा है, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर, वो वहीं की लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण देयर इज द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम दैट एग्जिस्ट, एंड आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते. कि आप सोचो कि मैं यहाँ पे बिल्कुल ही कंडीशन चेंज कर दूंगा, वो कभी भी नहीं होगा. देन कम्स द biogeographical regions in India, region which is comprising of the phytogeography and zoogeography, जिसको कहा जाता है, which deals with the region wise, it means region wise distribution of the plants. Phytogeography means plants की distribution region wise, and animals की distribution zoogeography region wise. So in India has different type of climates and topography. Topographical sheet आपने शायद 10th क्लास में जो ICSE बोर्ड्स हैं वो करते हैं अपने ज्योग्राफी चैप्टर के अंदर. तो एक शीट दे दी जाती है आपको रीजन की, और उसके अंदर आपने देखना होता है कि कहाँ पे सिटी है, कहाँ पे गांव है, कहाँ पे डेजर्ट है, कहाँ पे रिवर्स हैं. दैट इज मीन्स द टोपोग्राफी in the different parts of the country, and these variations have induced enormous variability in the flora and fauna. Fauna जानवर, flora plants. India has rich heritage of the biological diversity and occupies वर्ल्ड के अंदर इंडिया ने अच्छा लेवल बनाया हुआ है among the richest nations which has a huge biodiversity of plants and animals. तो ये कुछ जगहें हैं अकॉर्डिंग टू द बायोजियोग्राफिक जोन, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो एग्जिस्ट करते हैं. एंड ये बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, जैसे अपर रीजन्स हैं,
हिमालयन रेंज की। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फ्लोरा एंड फौना है वो ट्रीज हैं, पाइन, देवदार, और जो एनिमल्स हैं शीप, लेपर्ड और वुल्फ भी है पाया जाता है। देन हिमालयन जोन कम्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट हिमालयस or the West Himalayas and Central Himalayas. And over here, the trees like pine, castor, animals like wild bear, sambar, leopard, stag, musk deer, ये चीजें हैं यहाँ पे। किसी ने मस्क परफ्यूम का सुना है? एनीबडी हैज हर्ड अबाउट मस्क? ये जो मस्क परफ्यूम है, ये जो पहले के टाइम पे जिस भी सोर्स से ये परफ्यूम बनाया जाता है, आई थिंक इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ अ डियर। अगर गूगल करेंगे, इसमें लिखा भी हुआ है, मस्क इज अ क्लास ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंसेस कॉमनली यूज्ड एज बेस नोट्स इन द परफ्यूमरी। सो बेस नोट्स की तरह इसको यूज किया जाता है, मतलब ये काफी कंसंट्रेशन में इट इट हैज बीन देयर इन द ग्लैंडुलर secretions फ्रॉम द एनिमल्स सच एज द मस्क डियर। सो मस्क परफ्यूम जो था वो बनता था डियर से, ठीक है। तो मुझे नहीं पता अब इट इज really legal to kill a deer and make a perfume out of it or not. Then desert area, India का जो biogeographic area, it is in the Kutch, Thar and Ladakh area. And यहाँ पे जो trees हैं, that is Acacia, Ziziphus, Hejeri, date palm, the animals like camel, donkey, डेजर्ट कैट, फॉक्स एंड रैट पाए जाते हैं। सेमी एरिड एरिया इंडिया का गुजरात वाला एरिया है, जहाँ पे डेट पाम, पीपल का पेड़, या वहाँ के लोकल गिर, अगर किसी ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनी है, गिर टाइगर, गिर लायन। एंड यहाँ पे एक तो गिर टाइगर रिजर्व है टाइगर्स के लिए, एंड सेकंड टाइगर रिजर्व इज रतनपुर टाइगर रिजर्व इन वेस्टर्न घाट्स और इन द मालाबार कोस्ट। वेस्टर्न घाट माउंटेन है जहाँ पे शीशम की वुड, पीपल, ट्यूना, बहेरा, इस तरह की लकड़ मिलती है, वुड है। एंड एनिमल्स लाइक टोटॉइज, lizards and snakes are found there. Then Deccan Peninsula is along the नागपुर साउथ वाली साइड चला जाता है ये, डेक्कन प्लेटो इन द साउथ। एंड हेयर the woods like acacia, palash, tuna, pine, castor, animals like tiger, bear, cheetal, wild elephant, wild buffalo, and stag is also there. So according to the different biogeographic locations throughout India, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं। सो फॉर एग्जांपल, कॉमन थिंग, यूनिक थिंग आउट ऑफ दिस इज ये मैंगोज एंड जामुन, ये जंगैटिक प्लेन्स के अंदर होते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है थ्रू भूटान एंड चाइना, फिर इंडिया में आती है ब्रह्मपुत्र, वहाँ पे ज़्यादातर बैम्बूज, सल, जैक फ्रूट, चेस्टनट, एलिफेंट, राइनोसोरसेस, याक, डियर एंड पोर्क्यूपाइन तरह के जानवर हैं। तो अगर आपको वर्ल्ड ट्रैवल का शौक है, जैसे मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ नॉर्मली, तो एट रिसेंटली विजिटेड अ कंट्री इन वियतनाम, वहाँ पे कोई जानवर ही नहीं छोड़ते, वो सारे जानवर खा लेते हैं। तो ओवर देयर, ये पोर्क्यूपाइन देखा हुआ आपने जानवर? ये छतबीड़ जू के अंदर भी है पोर्क्यूपाइन एनिमल। इट्स अ स्मॉल एनिमल जस्ट लाइक रैट, एंड ये नॉर्मली अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने बॉडी में, इसकी बॉडी पे बहुत सारे पाइन्स होती हैं, तिखे तिखे कांट, तिखे तिखे स्पाइक्स की तरह होती हैं, और वो जब भी अपनी प्रोटेक्शन करना चाहता है वो अपनी पाइन्स को या स्पाइक्स को निकाल देता है फॉर द प्रोटेक्शन। बट ह्यूमन रेस हैज gone
सो फार कि उनको अपनी फूड की नीड्स को फिल करने के लिए या एक इसको एक क्या कहते हैं लग्जरी या एग्जॉटिक का या एग्जॉटिक एनिमल्स जिस तरह से एग्जॉटिक वेजिटेबल्स का कंसेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में उस तरह से इन्होंने काफी एक्सप्लॉइट करा है एनिमल्स को और कहीं ना कुछ ना कुछ ये पता नहीं किस तरह से ये कंज्यूम करते हैं चीजें देन आइलैंड्स लाइक अंडमान आइलैंड्स निकोबार लक्षद्वीप जो इंडियन आइलैंड्स हैं वहाँ पे कार्डमम होती है कोकोनट क्लोव्स ये वहाँ से आती हैं चीज़ें और उस तरह का मौसम देख लो आप वहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट एंड सीजन प्रिवेल करता है देन एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एलिगेटर एंड अदर एनिमल्स दे आर देयर कोस्टल एरियाज जैसे वेस्टर्न कोस्टल एरिया ईस्टर्न कोस्टल एरिया है एंड आपको पता है इंडिया का साउथ वाला पार्ट गुजरात महाराष्ट्र देन this Kerala is the west coast and eastern coast पे ओडिशा आंध्र प्रदेश कर्नाटका एंड तमिलनाडु आ गए और वहाँ पे आपको कोकोनट बनानास कैश्यू नट काजू एंड डॉल्फिन एलिगेटर्स इस तरह के सो दीज आर all from the biogeographic zones in India.